Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about 22nd November current affairs. So let's begin with the session, and first and foremost I want to give the list on which we will discuss today. So here is the list. Now first and foremost we will discuss about Joe Biden's Democracy Summit, in which Joe Biden invited around hundreds of head of states for Democracy Summit but avoided Russia and China. Second is Democracy Index, because it is related to this, that is why this Democracy Index came in February 2021. So in 2020 this Democracy Index is based on 2020, but it was released in February 2021. Next we will discuss, recently there is an update about POSCO Act. What happened we'll discuss. HomoSap is a robot which will be used to clean septic tank. You have heard about that. Many of the scavenger and many of the manual scavengers died during cleaning the septic tank, and that is why IIT Chennai made a robot, that is HomoSap. So we'll discuss on that. Now semiconductor shortage is going on, so what it is all about we'll discuss. Majuli River Island, why it was in news, and shale gas and its potential in India. These all topic we'll discuss. And in the next class, that means on the 23rd of November class, we will discuss regarding very important topic, and this is the Farmer Bill and Farm Act जो हैं. We will discuss about that in detail, what happened, because in the meantime I was not be there around 8-9 days. I had not taken the classes, and that is why some important topics is still to cover, and that is why I'll cover this topic as soon as possible. So along with these classes I'll add those topics which had not been covered so far, right? All those important topics we'll discuss in the regular current affair classes, right? So let's begin with the session. तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट पर. सो लेट्स बिगिन विद इट. यस, सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंड, एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एट व्हाइट हाउस. टाइमली मीटिंग होती रहती है. अपने आप में भारत का जो बॉन्ड है वो लगातार अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ रशिया, चाइना, पाकिस्तान. सो अमेरिका नीड्स अ partner, and India is the finest partner for this Indo-Pacific region. So PM likely to join Joe Biden's Democracy Summit. Leaders expected to spell out commitments to protect democracy. अब democracy की बात करें हम, India is the world's largest democracy, America is world's oldest democracy, but still we both आर फ्लॉड डेमोक्रेसी. सो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लॉड डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी. इंडिया का रैंक लगातार गिरा. हमारा रैंक 53rd पे था लास्ट टाइम, तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी कनेक्टेड पॉइंट. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन समिट फॉर डेमोक्रेसी, एंड यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज वर इन्वाइटेड, एंड also want grouping to send message to US chief rival China and Russia. उनको ये एक मैसेज देना चाहते हैं who are not invitees. तो देखिए ये अपने आप में एक पॉइंट है कि why they did not ask Russia and China. No doubt there is no democracy there, but they can call for discuss. So summit will follow close on heels of Mr. Modi and annual summit with Russian president. हमारे भी जो है देखिए nowadays India is having meeting 2+2 meeting India and Russia foreign ministers की, जो कि 6 दिसंबर को होने वाली है, when two countries are expected to announce a number of bilateral agreement and defense deal. तो यहाँ पर
ये जो समिट होने वाला है, दिस डेमोक्रेसी समिट विल बी हेल्ड ऑन 9th and 10th December. किसके बाद? जस्ट आफ्टर 2+2 मीटिंग विद रशिया there will be a democracy summit and it will be on 9th or 10th December, and in Russia, with Russia the bilateral meeting 2+2 meeting will be held on 6th of December. So Russia have been sharply critical of the democracy summit because they had not been invited. और यहाँ पर एक बात कही भी गई है कि ये पूरे वर्ल्ड को अटेम्प्ट टू डिवाइड द वर्ल्ड टू गार्नर मैक्सिमम लॉयलिटी. आपको पता होगा लॉयल्टी का मतलब कि अमेरिका ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंट्री शुड बी लॉयल टू इट, एंड दिस इज सेड बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया दैट ये वर्ल्ड को डिवाइड करने वाली बात है. मैक्सिमम लॉयलिटी चाहते हैं. इन्वाइटीज जो है वो सभी वही होंगे जो उनके लॉयल रहेंगे. तो इस प्रकार से उन्होंने इनको थोड़ा सा कमेंट क्रिटिसिज्म किया है. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ और जो बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी. यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल होस्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी. यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज को साइडलाइन करना चाहते हैं. अब आप इंडो पैसिफिक रीजन में ही देख लीजिए, म्यांमार और अफगानिस्तान, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर ऑटोक्रेसी है. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इट विल हेल्ड अराउंड 3 थीम्स. तो ये 3 थीम्स आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट, डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म. ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? जहां पर एक तरह का डिक्टेटरशिप होता है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है, या फिर जहां पर केवल और केवल किसी किंग का या डिक्टेटर का शासन होता है. तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, डिक्टेटरशिप अप्लाई हो जाती है अल्टीमेटली. Second, whenever we have any country consisting autocracy, authoritarianism or dictatorship, you must find there is humongous corruption. बहुत बड़े मात्रा में करप्शन होता है. You just have the example I have taught you regarding श्रीलंका. श्रीलंका में जिस प्रकार से पूरी की पूरी नेपोटिज्म कंप्लीट एक फैमिली रूल कर रही है, तो यहाँ पर फाइटिंग करप्शन, तो वहाँ करप्शन को रोकना ये एक एजेंडा है, इसी का हिस्सा है. प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, उसको प्रमोट करना. सो देयर वुड बी कंट्री वाइज कमिटमेंट मेड एट फर्स्ट समिट. यहाँ पर कंट्री वाइज जो है कि कंट्रीज अपने लेवल पे, जिस प्रकार से हम लोग एनवायरमेंटल समिट में जो टारगेट है अचीव करने, उसी प्रकार से कंट्री लेवल पर कुछ टारगेट अचीव किए जाए रिगार्डिंग डेमोक्रेसी. ये सब एजेंडा में है इसके. फॉलोइंग ए ईयर ऑफ कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, प्रेसिडेंट बाइडेन विल देन इनवाइट वर्ल्ड लीडर्स टू गैदर वंस मोर टू शोकेस प्रोग्रेस मेड अगेंस्ट देयर कमिटमेंट्स. तो क्या प्रोग्रेस हुई है उस कमिटमेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर एक बार फिर जो पूरा हुजूम है वो उमड़ेगा, राइट, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज का. द समिट विल गैदर टुगेदर हेड ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटीज, फिलेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट जो एड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं, जैसे बिल गेट्स इज वन ऑफ द फिलेंथ्रोपिस्ट, अजीम प्रेमजीज फिलेंथ्रोपिस्ट जो सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, और सोसाइटी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बहुत लार्ज अमाउंट वो डोनेट भी करते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर. तो दीज ऑल विल बी देयर इन दिस डेमोक्रेसी. और ये जो डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, डेमो या आप एक डेमो प्लस क्रेसी. सो डेमो शब्द जो बना है ये डेमा से या डेमो एक ही बात है, डेमा से बना है जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा शासन. तो ये जो डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश रूल होने की वजह से हमारे जो रॉयल एलीट या कह लीजिए किंगडम्स वगैरह थे वो सभी बाद में डेमोक्रेटिक रूप से कन्वर्ट हो गए. सो डेमा, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैं एक वर्ड और देता हूँ, डेमागॉग. डेमागॉग कौन होता है? जो नेगेटिव
नेगेटिव पर्सन है जो कई प्रकार से कंट्री में एनार्की ला दे, राइट, उसके स्टेटमेंट्स की मदद से, राइट। तो डेमागॉग, लोगों को उकसाने वाला। अ पर्सन हु अराउज पीपल नेगेटिवली, हु एग्रेवेटेड द सिचुएशन, है ना, इन एनी केस, लाइक, सो दिस इज डेमागॉग। तो डेमा जहां भी शब्द आए दैट मीन्स पीपल। सो रशियन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड इट एन अटेम्प्ट टू डिवाइड द वर्ल्ड, गार्नर मैक्सिमम लॉयल्टी, ताकि अमेरिका अपने लॉयल्टी ज़्यादा बना सके और एक वो जो डोमिनो इफेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये अपने लॉयल्टी चाहते, टर्की वगैरह जो है, वहीं यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, राइट, यूरोपियन यूनियन ये अपनी लॉयल्टी चाहते हैं। तो अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न वुड बी एक्सटेंड ऑफ commentary about quality of democracy amongst conference of invitees। तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी किस लेवल पर पहुंची है, राइट, उसको देखेंगे। इंडिया हैज ट्रेडिशनली रिगार्डेड इश्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एज इंटरनल मैटर, लेकिन व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अमेरिका में जो एनजीओज हैं वो समय समय पर ब्लेम करते हैं इंडिया में, स्पेशली द जम्मू कश्मीर इशू, कि कहीं ना कहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है, और अमेरिका में कई बार इसके लिए एक्ट बिल पास होते रहते हैं कि इंडिया में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत से इश्यू हैं। सो इंडिया हैज ट्रेडिशनली रिगार्डेड इश्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट एज इंटरनल मैटर। इंडिया हमेशा इंटरनल मैटर मानता है इसे, एंड नो कंट्री कैन डिस्कस अबाउट दिस, और उसके बारे में कोई एक्ट इस तरह का पास ना हो। In the past few years, Ministry of External Affairs has rejected attempt by US, the European Union and UK legislatures to pass a resolution on the issue such as restriction in Jammu Kashmir, protest over farm bills and Citizenship Amendment Act। तो CAA का और जो फार्म बिल जिसे आप रिपील कर दिया गया है, एंड जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट को हटाया गया, नज़रबंद कर दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, राइट। तो ये इन सभी को हम जो है इसमें कंसीडर, इसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग, अप्लाई करते हैं, कई बार बिल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं अपने कंट्री में। इज इट क्लियर? तो ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस, ये सभी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाता है उनके पार्लियामेंट में, उनके हाउसेज में, और ये इंडिया को बियर नहीं, तो ये एक एंगल हमें पता होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी समिट इस बार जो बाइडन जो है इनवाइट कर रहे हैं, वहीं रशिया ने बोला है कि ये मैक्सिमम लॉयलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए और फेवरेटिज्म करने की कोशिश की जा रही है। इज इट क्लियर? सो गिव मी वन मिनट। आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्को एक्ट। तो व्हाट इज पोस्को? पोस्को आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोस्को। सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। उसके बाद 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था। सो पोस्को इज चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये क्या है? So it was enacted to protect children from offense of sexual assault, और इसको लगातार स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है, लगातार स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, पोर्नोग्राफी हो, स्पेशली जो किड्स हैं, चाइल्ड हैं, है ना, जो जुवेनाइल हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनके साथ में यदि किसी भी तरीका पेनिट्रेशन है या हैरेसमेंट है, एजॉल्ट है, पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स ले ली जाती हैं, सो इनको एक सिक्योरिटी सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस पोस्को। इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। और आपको पता होगा कि यदि कोई भी रेप केस है, वो यदि 20, 21, 25, 30, 35 की एज में हुआ है, एनी रेप केस, that is not that stringent if any rape case of any
विक्टिम बिलो 18 उनके लिए स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो इस पोस्को एक्ट के तहत ही आते हैं. दिस प्रोवाइड्स अ पावर टू गिव मैक्सिमम पनिशमेंट. सो रिगार्ड द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के वेलफेयर के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एट एवरी स्टेज टू एंश्योर हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट सब कुछ हो इसलिए, और ये 18 साल से छोटे को एक चाइल्ड के तौर पे मानते हैं. इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी यदि बनाई जाती है तो उस केस में इसको इंक्लूड किया जाता है. सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रेवेटेड अंडर सर्टेन circumstances such as when the abused child is mentally ill. यदि कोई abused child mentally ill है, आपको पता ही है कि मिसयूज किया जाता है हर उस परिस्थिति का, जैसे कि कोई मेंटली इल है तो उसका मिसयूज किया जाता है. When the abuse is committed by a person in a position of trust of authority like family, आपको ये भी पता है फैमिली मेंबर्स ही इस प्रकार की चीज़ों को मिसयूज करते हैं, पुलिस ऑफिसर टीचर एंड डॉक्टर, तो इन सभी केस में भी इसको इंक्लूड किया गया. इट ऑल्सो कास्ट पुलिस इन द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर. पुलिस जो है उस रोल में रहेगी कि वो चाइल्ड प्रोटेक्टर के तौर पे काम करे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस, और जो इंफॉर्मेशंस हैं जो नाम हैं वो मीडिया वगैरह को ना जाए और ना ही वो उसको रिलीज करे, तो उसका नाम कुछ जो है स्यूडो नेम दे दिया जाता है. यस और नो. स्यूडो का मतलब क्या होता है? छदम, फेक नाम. जैसे निर्भया केस में उनका नाम निर्भया दे दिया गया था 2012, है ना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिल्ली क्राइम? दिल्ली क्राइम दैट इज अ वेब सीरीज. कितने लोगों ने वो देखी है? सो एक्ट स्टिपुलेट्स द केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन ए ईयर. सबसे खास बात यह है कि बहुत ही क्विक रेजोल्यूशन उसको सॉल्व किया जाए. इट वॉज अमेंडेड इन अगस्त 2019 टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, और 2019 में इसे और भी ज़्यादा कर्कश कठोर पनिशमेंट बना दिया गया था. ये तो है पूरा पॉस्को एक्ट. बात ये आती है कि ये चर्चा में क्यों था. रिसेंटली व्हाट हैपेंड, जो एक सब यूनिट है बॉम्बे हाई कोर्ट की दैट इज इन नागपुर, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसके कारण ये वर्डिक्ट, एक फैसला दिया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? उसको करेक्ट करना पड़ा. सो सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल टू करेक्ट एन इग्रेजियस का मतलब होता है एक शॉकिंग एरर, एक ब्लंडर, है ना. फोपा, ब्लंडर का मतलब एक बड़ी गलती, ब्लंडर, राइट. एक और वर्ड आता है इसके लिए, फोपा. ये एक वर्ड है फोपा, मतलब एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती जिसे सुधारना जाए, लेकिन इन्होंने यहां पे फाइनली सुधार दिया. इंटरप्रिटेशन committed by judge in Nagpur bench of Bombay High Court in holding that sexual assault on child victim would require skin to skin contact. अब देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर आपको केस बता देते हैं. यदि आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं you can easily understand this meaning. Groping a minor breast without skin to skin contact. प्रीवियसली क्या होता था, नागपुर हैज़ गिवन अ वर्डिक्ट, और उसमें उन्होंने उनको जो एक्यूज थे उन्हें रिलीज कर दिया कि भाई उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर माइनर्स ग्रोपिंग ए माइनर्स ब्रेस्ट वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बट एक्चुअल में इंटेंशन क्या था, इंटेंट क्या था, दैट वाज सेम, इंटेंट वाज रॉन्ग. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर के जो एक्यूज को फ्री कर दिया था उन्हें जो है पलट दिया है. ठीक है. सो द सुप्रीम कोर्ट टुडे रूल्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए क्राइम टू बी कंसीडर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम. ये जरूरी नहीं है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुई हो, राइट. यदि इंटेंशन गलत है तो यहाँ पर नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो इसे तो एक तरह का नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहा जाएगा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बट इंटेंशन वाज द सेम, एंड दैट इज व्हाई दिस पॉस्को एक्ट अगेन केम इनटू न्यूज. So can't be termed as sexual assault under POSCO.
तो ये इश्यू जो था, और यहाँ पर के वेणुगोपाल, देखिए अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल हैड अपोज द बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट, उन्होंने भी अपोज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट का। आपको पता ही है गवर्नमेंट का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, दैट द कोर्ट इंटरप्रिटेशन वुड मीन दैट समवन कैन वियर, तो उन्होंने देखिए एक लैंग्वेज भी दी है कि यदि कोई सर्जिकल ग्लोव का प्रयोग करके किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसका मतलब उसने स्किन टू स्किन तो टच नहीं किया और सब कुछ किया। So he had added that it will be treated as precedent and result will be devastating. तो ये तो रिजल्ट बहुत खराब आएगा। इज इट क्लियर? तो ये सब इसलिए चर्चा में है। High Court had constructed Section 7 of the Protection of Children and Sexual Offence Act pertaining to sexual assault on children in such a way that it concluded that act for which accused were charged did not amount to sexual assault. तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसकी जो नागपुर ब्रांच है उसने जो है चार्ज डिड नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट, और वहाँ पर उसको के वेणुगोपाल, फिर ये थोड़े एक्टिविस्ट आए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ये करार दिया कि स्किन टू स्किन इज नॉट नेसेसरी। पॉस्को एक्ट इनेक्टेड कब हुआ था? 2012 में। कब संशोधित हुआ अमेंडेड? 2019 में। द एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड टू इफेक्टिवली एड्रेस sexual abuse and sexual exploitation of children and pornography। तो उसके लिए ये बनाया गया था उनके सेफगार्ड करने के लिए। पुलिस एक तरह से हेल्पिंग हैंड बनेगी उनका। एक्ट डिफाइंस चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 साल से छोटे बच्चे को इंक्लूड किया गया है। एक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जितना जल्दी हो सकता है जो कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाए। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस वहाँ पर एक फ्रेंडली मैनर में काम करे। एक्ट प्रेस्क्राइब्ड एज मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, डेथ पेनल्टी मिल सकती है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है अपने आप में। एक्ट प्रोवाइड ए मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल का तो मिलेगा कैसा भी केस है यदि पॉस्को के एक्ट के तहत, मतलब 18 साल से छोटे चाहे मेल या फीमेल चाइल्ड है और थर्ड कैटेगरी जेंडर भी है तो भी ये कंसिडर किया जाए। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल, और ट्रायल जल्द से जल्द किया जाता है। आपको निर्भया केस में भी देखा था कि कितनी जल्दी से विद इन ए ईयर जो है वर्डिक्ट आ गया था, फाइनल वर्डिक्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट? पोस्को एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? एक्ट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ एट फाइलिंग ऑफ द केस, तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलता है, सबसे खास बात है। कंपनसेशन अमाउंट कैन बी चार्ज बेस्ड ऑन नीड ऑफ विक्टिम, विक्टिम की कितनी आवश्यकता उस हिसाब से कंपनसेशन चार्ज भी उनको दिया जाता है। एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, ऐसा नहीं है चाइल्ड फ्रेंडली है, मतलब यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है, चाइल्ड फ्रेंडली है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, भारत जो है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड का सिग्नेटरी है। सो द पॉस्को एक्ट वाज मैंडेटरीली इंटरनेशनल कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट के तहत हम लोग भी, इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया हैज़ 472 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, अपने आप में देख लीजिए। आप एज ए कंट्री देखें तो आप देख लीजिए चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इज इंडिया, और उसके बाद 40 करोड़ पीपल की पॉपुलेशन है इन यूएसए, थर्ड लार्जेस्ट। बट यूएसए में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा भारत में 47.2 करोड़ पीपल रहते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है बिलो 18 एज। देम टू सेक्सुअल ऑफेंस सेपरेट लेजिस्लेशन वाज रिक्वायर्ड, और ये पॉस्को हमने इसीलिए बनाया 2012 में। 2012 में आपको याद आ रहा होगा निर्भया केस भी आया था। एक्ट वाज सफर्ड बाय एबिस्मल रेट ऑफ कन्विक्शन लाइक 14% इन 2014। हाँ, लेकिन जो कन्विक्शन, जो इसमें केसेस दायर किए जाते हैं वो कई बार फेक भी होते हैं, तो यहाँ पर एबिस्मल बहुत ही लो रेट है जो कन्विक्शन रेट है। तो जो केस दायर होते हैं आउट ऑफ देम अप टू 2014 14% वाज कन्विक्शन रेट, 2017 तक 18%। तो ये एक चैलेंजेस के तौर पे इसमें पॉस्को में है। मैनी स्टेट डिड नॉट एस्टेब्लिश, स्पेशल कोर्ट्स ही नहीं बनाए गए हैं जबकि सभी को बनाने चाहिए थे। एक्ट डज नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ऑफ चिल्ड्रन, सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है। इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, जो लॉ रिसर्च और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्हें
चीज़ों को लगातार ऐड ऑन करते जाना चाहिए। वैसे क्या होता है, केस टू केस क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐड होती जाती है समय समय पर। पॉस्को एक्ट इज कंसिडर्ड एज विक्टिम ओरिएंटेड स्टैट्यूट। द डैमेज कॉज टू द विक्टिम एज्यूम मोर इम्पॉर्टेंट, कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है विक्टिम को साइकोलॉजिकली, मेंटली। दिस मेक्स द एक्ट नॉट ए न्यूट्रल वन। तो यहाँ पर ये एक एक्ट के तौर पे काम कर रहा है, न्यूट्रल वन नहीं है, ये तो पूरी तरह से ओरिएंटेड है किस पर, कितना ज़्यादा विक्टिम को एजॉल्ट हुआ था। आई थिंक ये पॉस्को पूरा एक्ट और जो बाइडेन समिट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब क्यों चर्चा में आया। जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें डेमोक्रेसी इंडेक्स को भी समझना होगा। तो लीजिए डेमोक्रेसी इंडेक्स पर बात कर लेते हैं, जो मैं पहले ही बता देता हूँ, फरवरी 2021 को ये रिलीज हुआ था। ये पुराना कंटेंट है, लेकिन समय समय पर हम जो भी टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है उसको ऐड करके देखने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी में आया। 2020 एक्चुअल में 2021 का डेमोक्रेसी इंडेक्स था, और 2020 का पूरा डेटा स्टैटिस्टिक्स पे काम हुआ, इसलिए 2020 बोल दिया गया। रिलीज हुआ था 2021 फैब में। रिपोर्ट का टाइटल क्या था, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो डेमोक्रेसी सिकनेस, क्योंकि ये पूरी तरह से पेंडेमिक का दौर था, तो इसलिए उसके थ्रू एक मतलब रिलेटेड टाइटल बनाया गया। इट हैज़ बीन, और ये कौन रिलीज करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की रैंकिंग 53rd थी। भारत एक फ्लॉड डेमोक्रेसी रहा। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग बाय अथॉरिटीज, क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज जो जम्मू कश्मीर में हुआ, इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो हुआ, राइट, तो ये कुछ इश्यूज रहे। लेट फर्दर, तो ये कुछ सिविल लिबर्टीज का जो क्रैकडाउन, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, इसके कारण और रैंकिंग भारत की गिरी। अब देखिए कहाँ 2014 में हमारा अपने आप में पीक पर थे हम लोग, रैंकिंग में 7.92 मार्क्स मिले थे, और 2020 में ये 6.61 पर चला गया। और इस प्रकार से रैंकिंग भी देख लीजिए। इन 2014 इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स वाज 27, नाउ इट इज 53rd। तो लगातार देखिए, जो करंट गवर्नमेंट है वही 2014 से ही आई थी, करंट गवर्नमेंट के टेन्योर में लगातार गिरते हुए हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी सरकार को काम करना चाहिए। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके लिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी के तौर पे बताया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ रिलीजियस एलिमेंट, है ना, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है गवर्नमेंट, इस तरह के आरोप इसमें लगाए गए। द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अ स्टेप मैनी क्रिटिक्स सी अंडरमाइनिंग द सेक्युलर basis of Indian state. The authorities handling coronavirus pandemic led to further erosion. यहाँ पर जिस तरह से पेंडेमिक को हैंडल किया गया उसने भी सिविल लिबर्टीज़ को और ज़्यादा इरोड किया है। नेबरिंग कंट्री की बात करें तो आपको पता ही है, श्रीलंका में तो हालत बहुत बुरे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पर नेपोटिज्म है पूरी तरह से, तो फ्लॉड डेमोक्रेसी वो भी है, इंडिया भी है। बांग्लादेश में और वर्स्ट हालात है, भूटान में। अब आप बोलेंगे ये रैंकिंग ऐसे कैसे है, देखिए ऑथोरिटेरियन रिजीम है, भूटान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक नरेश है। पाकिस्तान की हालत और भी ख़राब है, तो ये हाइब्रिड रिजीम में आती हैं, ठीक है, हाइब्रिड, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान ऑथोरिटेरियन रिजीम है, इसी प्रकार से म्यांमार भी। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये टॉप 5, नॉर्वे के बाद ये आइसलैंड, स्वीडन, है ना, तो नंबर 1 पे डेमोक्रेसी नॉर्वे में। अब देख लीजिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था, यूएस, इंडिया दोनों की ही फ्लॉड डेमोक्रेसी है। बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, चाइना, सिंगापुर एंड अदर वर फर्दर हैव रेस्ट ऑन द वर्ल्ड ट्रैकिंग पॉलिसी एंड सिटीजन लॉकिंग देम डाउन इन, और भी ज़्यादा ये गिरे हैं चाइना वगैरह। तो इस प्रकार से आउट ऑफ 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स
एंड 2 टेरिटरीज, उनमें इंडिया का रैंक आपको एकदम क्लियर हो गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये लाया जाता है, राइट। और यहाँ पर बताया गया 165 में से इंडेक्स में 23 जो कंट्रीज हैं टॉप, वो हैं फुल डेमोक्रेसी। 52 जिनमें से इंडिया, यूएस, फ्रांस इत्यादि, वो सभी फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं। हाइब्रिड रिजीम में हमने भी देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, राइट, वो और भूटान। 57 तो पूरी तरह से ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियन रिजीम का मतलब जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए, इंडेक्स के लिए आपको EIU की ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। ऑन व्हाट पैरामीटर इट गिव्स द मार्क्स। तो सबसे पहले तो इलेक्टोरल प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, तो इस मैटर में भारत काफ़ी ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड प्लूरलिज्म, मतलब यहाँ पर देश में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिक पीपल कितना सेक्युलर है, उसको लेकर पहला पैरामीटर ये है। सिविल लिबर्टीज को कितना मतलब रिलीफ है। द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, वो किस प्रकार से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। तो इस बिहाफ पे 5 कैटेगरीज के बिहाफ पे ये उसको रैंकिंग देते हैं। रोबोट बनाया गया है IIT चेन्नई के द्वारा, क्योंकि बहुत सी मौतें हो जाती थी, है ना, कई बहुत से कैजुअलिटी हो जाती थी जब जो मैनुअल स्कैवेंजर है वो जाते थे इन सेप्टिक टैंक, और वहाँ पर खतरनाक गैसेस, उन गैसेस में ये पूरी लिस्ट है। देखिए कि ये जो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो H2S बहुत ही खतरनाक गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कई बार क्या होता था, मैनुअल स्कैवेंजिंग में उनकी मृत्यु हो जाती थी। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि खुद एक मैनुअल स्कैवेंजर खुद ही अपना जो मैला है, जो वेस्ट है, उसको खुद साफ करना चाहिए। और भारत में लगभग 1,82,000 लमसम मैनुअल स्कैवेंजर है जो इस प्रकार से सेप्टिक टैंक में जाते हैं। तो उनके लिए रूल्स भी आए थे, रेगुलेशंस भी आए थे, और नॉर्मली ये माना गया है कि ज़्यादातर जो है ना, जो इस प्रकार से जाते हैं अंदर, या तो उनकी कई बार तो मृत्यु सेप्टिक टैंक में हो जाती है, अदरवाइज उनका जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो जीवन प्रत्याशा दर है, रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, नॉर्मली भारत में कितना चल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो 69 है, लेकिन इनकी आयु 60 ही मानी जाती है। उसके पीछे कारण यही है कि ये अपने आप में एक ड्रेडफुल लाइफ व्यतीत करते हैं। So IIT Madras has developed robot that can, if deployed extensively, put an end and practice sending people into, तो यदि इसको लाया जाएगा तो लोगों को सेप्टिक टैंक में नहीं भेजना होगा। समय के साथ साथ क्या हो जाता है, ये ऊपर के प्रेशर की वजह से जो लोअर पार्ट है वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसको क्या करा जाता है, वेल्डिंग ब्लेड की मदद से ये रोबोट क्या करता है, उसको कचरे को बाहर करके और फिर क्या होता है, पंप की मदद से खींच लेता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए हाइट वगैरह बढ़ाई जा सकती है, ये वेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, राइट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। होमोसैप स्टैंड फॉर होमोजेनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक। इट हैज शाफ्ट अटैच्ड टू ब्लेड, इसके शाफ्ट है, ब्लेड से अटैच्ड है, कैन ओपन लाइक इन्वर्टेड अम्ब्रेला, और ये अम्ब्रेला की तरह से, खुले अम्ब्रेला की तरह से खुल सकता है जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सेप्टिक टैंक में। हेल्पफुल फॉर ओपनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक एंड स्मॉल टैंक इंटीरियर आर बिगर। तो ये इसको बनाया ऐसा गया है ट्राइपॉड की तरह से, ये कि ये आसानी से वहाँ जाकर उसको कंटेंट जो फिकल मैटर है धीरे धीरे थिकंड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, क्ले जैसी मिट्टी हो जाती है अल्टीमेटली इनसाइड द सेप्टिक टैंक, द लोअर पार्ट। दिस नीड टू श्रेडेड एंड होमोजेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी सक्ड आउट। तो सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग ब्लेड्स हैं जो अचीव करती है प्रिसाइजली कि ताकि वो है जो हार्ड पार्ट है वो भी निकल जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण बहुत सी मृत्यु हुई और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बताया कि 5 ईयर्स से, मतलब लास्ट 5 ईयर में, और जो ये टिल December 31, 2020 देयर हैव बीन 340 डेथ्स, और ये लगातार आता रहता है अखबारों में।
और इसी के लिए कुछ एक्ट भी बने थे बिफोर लास्ट ईयर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसीलिए चूंकि ये एक सॉल्यूशन है, इस पर और भी जो स्टार्टअप्स है उन्हें काम करना चाहिए। सो उत्तर प्रदेश में 52 मैक्सिमम डेथ्स, फिर तमिलनाडु, फिर दिल्ली, डिस्पाइट बैन प्रोहिबिटरी ऑर्डर, और वैसे बैन है इस पर कि अब इस पर इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो। वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाए गए, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट लाया गया, राइट, ऑन साइट प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इट इज स्टार्टेड नेशन वाइज, जो मैला मुक्ति यात्रा, टोटल इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्रॉम 30 नवंबर 2012 फ्रॉम भोपाल। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान से पूरी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म कर दिया जाए, इसकी शुरुआत भोपाल में हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ये तो आपको पता ही है 1989 का एक्ट जो है, जिसके तहत जो SC ST को प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई उनको, लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी होता है, बट यहाँ पर जो सैनिटेशन एंड गार्ड है, इंटीग्रेटेड है वर्कर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पर उन्हें स्पेशली फॉर SC, तो उन्हें एक सिक्योरिटी प्रदान की जाती है कि उनके ऊपर कोई कमेंट वगैरह, और यदि होते हैं they can submit the FIR, right? So यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन भी देखा गया 2014 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मेड इट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु वर डाइड इन सीवेज वर्क सिंस 1993, और उन सभी को 10 लाख रुपए आपको देने हैं, क्योंकि इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाएगा। तो अपने आप में ये सभी जो कानून हैं, आपको ये पॉइंट्स तो एटलीस्ट याद रखने ही हैं, ठीक है, राइट। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ये अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पर 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था ये। इट्स पर्पस टू कंप्लीटली मैकेनाइज, मतलब, और इसी मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग के लिए ही IIT में जो होमोसैप बना है, ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है। इंट्रोड्यूस वे ऑन साइट प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू मैनुअल स्कैवेंजर, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। 2013 में अमेंडमेंट किया गया था, राइट। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, एंड जुडिशियल इंटरवेंशन, है ना। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को हमने बिफोर प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, महाराष्ट्र का केस भी डिस्कस किया था, इसका यूज भी है, कई बार इसका मिसयूज भी होता है। एंड सेप्टिक टैंक में कौन कौन सी गैसेज हैं, तो ये यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो गया। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल्स हैं, और मतलब जो व्हीकल्स, कार्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इनके जो प्राइस है वो कॉस्ट बढ़े हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि सेमीकंडक्टर्स की कमी है। इंटेल बहुत पीछे चला गया, इंटेल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। AMD आज की तारीख में लीडर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स जो बनाए जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं ताइवान के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर हमें इस शॉर्टेज को रिकवर करने के लिए आपको ये भी पता होगा, PLI, प्रोड्यूसर लिंक इनिशिएटिव के तहत हम लोग सैमसंग इत्यादि के पूरे जो है NCR में स्थापित कर रहे हैं इंडस्ट्री, है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। चिप्स और प्रोसेसर पावर एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट इन मार्केट, कोई भी देख लीजिए आप नाउडेज, एनीथिंग, इवन वॉशिंग मशीन देख लीजिए, AC देख लीजिए, TV देख लीजिए, एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कार, या फिर इवन आप लिफ्ट देख लीजिए, ऑल कंसिस्ट सेमीकंडक्टर्स। तो वॉशिंग मशीन, कार्स, यहाँ पर इनकी कॉस्ट बढ़ गई। पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सेमीकंडक्टर के कारण पूरी कार मैन्युफैक्चर हो गई, बट सेमीकंडक्टर डिवाइस की वजह से वो जो है एक तरह से वेयर हाउसेज में ही गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स जो हैं, आपने सुना होगा डायोड एंड ट्रायोड। ये क्या होती हैं? डायोड एंड ट्रायोड, ये क्या होती हैं भाई? डायोड एंड ट्रायोड एक तरह के चिप्स होती हैं जो क्या करती हैं, ये तो सबसे बेसिक इक्विपमेंट होता है। सेमीकंडक्टर का बेसिक इक्विपमेंट क्या है? डायोड या फिर ट्रायोड।
और ये डिसीजन लेने की क्षमता रखती हैं 0 या 1 पर, मतलब ऑन ऑफ। और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों एक सिंगल चिप पर सेमीकंडक्टर्स को जो है लगाया जाता है और सेमीकंडक्टर चिप बनती है। और इसे जॉर्डन मूरे के द्वारा, इंटेल के जो को फाउंडर है उनके द्वारा एक नियम भी दिया गया था, आपको याद आ रहा होगा, मूरेज लॉ, कि इन एवरी 18 मंथ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जिसको ट्रायोड कह लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, उनकी संख्या ये सिमिलर सेम साइज की जो चिप है, यदि आज की तारीख में 1 लाख इस पर हमारे सेमीकंडक्टर्स या फिर ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जाते हैं, 18 महीने के बाद 2 लाख, उसके 18 महीने के बाद 4 लाख। तो इस प्रकार से 1971 से लगातार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ करती चली जा रही है। बट अभी क्या हुआ, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, डिमांड वगैरह कम हो गई, इसके कारण सेमीकंडक्टर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कमी आ गई। इट इज़ जनरली क्रिएटेड, ये जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि सेमीकंडक्टर्स मेटल होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं और इन पे कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिलाया जाता है। सेमीकंडक्टर्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज टू द एलिमेंट। कौन जाइंट है भाई, यहाँ पर ताइवान का नाम आता है हमेशा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ डोमिनेटेड बाय ताइवान और उसकी जो एजेंसी है वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। और इसीलिए चाइना भी थोड़ा इससे परेशान रहता है, इंडिया के अभी इसीलिए ताइवान से बहुत अच्छे संपर्क हुए हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाला है, काम चल रहा है। अमेरिकन चिप मेकर इंटेल, ठीक है, AMD जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, अमेजोन, क्वालकॉम, ये सभी फैब्रिकेट करते हैं। वाई इज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मैन्युफैक्चरिंग केम टू स्टैंड स्टिल इम्पैक्टिंग द सप्लाई चेन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो डिमांड सप्लाई है वो गैप की वजह से सब कुछ जो है एक विशियस साइकिल में चला गया। एज ऑटोमेटिव सेक्टर ऑलमोस्ट शट डाउन लास्ट ईयर, तो यहाँ पर डिमांड कम हो गई तो चिप मेकर में गैप आ गया, उन्होंने जो डिमांड दी वो बाद में दी, फिर जब तक आएगी। सेलफोन, मोबाइल, लैपटॉप सभी के ये जो है ना डिले हो गए, राइट। ऑटोमोटिव चिप, मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप में से कितने लोगों ने मुझे बताइए RISC रिस्क और है ना इसका नाम सुना है क्या, क्या होता है ये, और ये बता दीजिए कि जो कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है ना चिप्स पर आते हैं, जैसे मैंने मूरेज लॉ बताया आपको, राइट। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, राइट। LSI, इसके बीच में होता है MSI। तो सबसे शुरुआत जब हुई थी वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुआ, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ थर्ड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ पॉइंट था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आज की तारीख में जो चिप बन रही हैं वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल चिप में लगा दिए जाते हैं। और इसीलिए एक समय पर जो सुपर कंप्यूटर्स हुआ करते थे, जो लगभग पूरे के पूरे एक कॉम्प्लेक्स जितने बड़े हुआ करते थे, नाउ दिस होल पावर इन अ सिंगल चिप लाइक दिस साइज। तो इतनी साइज की चिप में इतनी कैपेसिटी होती है, इसीलिए क्योंकि लगातार हम लोग नैनो लेवल पर काम कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो है यूज इन दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हैज इंडिया मिस द बस सेटिंग अप चिप फैक्ट्रीज, का हम अपनी बस को छोड़ चुके हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस एरिया में। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन सेटिंग अप चिप प्लांट। और लगातार क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। अभी जो 7 नैनोमीटर चिप में जो कंपटीशन चल रहा था इंटेल और AMD का, उसको AMD ने जीत लिया और कहीं ना कहीं 2 साल पीछे चला गया है उसकी तुलना में। तो AMD ने अपना एक हेजीमनी ज़्यादा अच्छा कर लिया, जबकि इंटेल पहले अच्छा हुआ करता था। सो पास्ट इनिशिएटिव सेटअप चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द कंट्री नेवर टुक ऑफ, कभी भी भारत में ये तेजी से, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस बार हम सैमसंग के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम के तहत हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाउ इज चिप क्राइसिस प्लेइंग आउट जियोपॉलिटिक्स, तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल चिप क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, विद चाइना हैव शिफ्टेड फोकस बैक ऑन सेमीकंडक्टर। तो चाइना अब एक बार फिर से सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है। यूएस विच इज वंस अ लीडर ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग वांट द क्राउन बैक, वो भी अपना ताज पोशी पुनः चाहता है। प्रोटेक्शनिस्ट यूएस इज लुकिंग टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, वो चाहते हैं कि फिर से अमेरिका के पास जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फिर से आ जाए और वही क्राउन ताजपोशी उसी को हो जाए। तो वो प्रोटेक्शनिस्ट यही चाहते हैं, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट में आप डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रोटेक्शनिस्ट थे, वो हमेशा अपने ट्रेड को बचाने की कोशिश करते थे। चाइना का जो रिन्यूड जो नया देखने को मिल रहा है ताइवान के खिलाफ एग्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट वो दिखाई देता है। इम्पैक्ट क्या हुआ है भाई, द क्राइसिस इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ग्लोबल ऑटोमोटिव, देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, $210 बिलियन रेवेन्यू का 2021। ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हैज अफेक्टेड मैनी इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ ईयर, और पूरी तरह से एक डेडलॉक साइकिल में चला गया है, विशियस साइकिल में चला गया है। द कंजम्पशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट इज प्रोडक्ट इज एवर इंक्रीजिंग, a large manufacturing sector for these kind of integrated circuits are the part of supply chain, तो ये सभी जो हैं सप्लाई चेन का हिस्सा है। द शॉर्टेज हैज़ अफेक्टेड स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, मैं भी देख रहा हूँ कि 1.5 टाइम्स मतलब 50 to 100% तक डिमांड बढ़ चुकी है लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल की। इसके पीछे एक रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न तो ये है कि भाई एक तो डेडलॉक के कारण सप्लाई साइड से दिक्कत है। देखिए यहां पर एक चीज तो क्या हुई, सप्लाई साइड से कमी आई ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग इशू। सेकंड क्या हुआ, डिमांड साइड से डिमांड बहुत बढ़ गई। कैसे, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, लोग जिस तरह से रील्स चीज़ें और अपनी जो लगातार जो इंडस्ट्री चेंज हुई है उसमें सभी लोग स्विच कर चुके हैं, सभी के पास आज की तारीख में लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से वो अपना जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट है उसको उस लेवल पे कवर कर रहे हैं। सो डिमांड बढ़ गई, इधर सप्लाई कम हो गई। सो यहाँ पर बहुत अंतर आया है। आज की तारीख में आप कंप्यूटर वगैरह खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे तो कॉस्टली आ रहा है कंपैरेटिवली। इज इट क्लियर? तो ये है क्या इश्यू था, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम करती हैं, राइट। तो माजुली रिवर आइलैंड, माजुली रिवर आइलैंड पे हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माजुली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इसको अभी डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है माजुली आइलैंड को। बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन इसे डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और सबसे खास बात, इसे कार्बन न्यूट्रल 2020 में, मतलब जिस प्रकार से भूटान ने अपने आप को कार्बन नेगेटिव घोषित किया है उसी प्रकार से कार्बन न्यूट्रल के तौर पे इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था 2020 में। अभी क्या हो देखने को मिला माजुली में, दुनिया का सबसे बड़ा ये रिवर आइलैंड है। सॉइल इरोजन देखने को मिला, कपल्ड विथ चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, लगातार क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है। हैज बीन राइटिंग ए क्रूअल डेस्टिनी एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ माजुली इन आसाम, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और अभी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण और पानी वाटर के कारण यहाँ पर क्या है, सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है। माजुली रिवराइन आइलैंड है और इसे 2016 में ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ये फर्स्ट आइलैंड है जो असम में है और इंडिया का, जिसे एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। देखिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी स्पेशल फोकस करने के लिए। माजुली वाज श्रंक एज रिवर सराउंडेड इट हैज़ ग्रोन, तो यहाँ पर ये कम हुआ है रिवर, क्योंकि आपको पता ही है ब्रह्मपुत्रा बहुत ही जो है पेरेनियल रिवर के साथ साथ फ्लोइंग का जो इसका लेवल है वो बहुत शार्प है। गंगा से ज़्यादा वाटर ये कैरी करती है। इट हैड एन एरिया ऑफ 880 स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत बड़ा इस एरिया नहीं है ये। बिगनिंग 20th सेंचुरी हैविंग लॉस्ट सिग्निफिकेंट टू इरोजन इट्स कवर, तो लेकिन क्या हुआ कि 2014 तक इसका काफ़ी चीज़ें
इरोज हो गया है। आसामीज नियो वैश्वनाइट वैश्वनाइट का मतलब जो वैष्णव कल्चर है, मतलब कृष्णा समुदाय का, वो कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन साउथ एंड खेरकुटिया जुटी एंड अ ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र जॉइंड बाय सुबनसिरी रिवर, तो उस लोकेशन पर ये लोकेटेड है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द कोर्स चेंज बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मेनली द लोहित। तो जब ये बना था तो उसका कारण ये था कि कुछ समय के लिए रिवर ने अपना फ्लो चेंज कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ये याद रखना है, माजुली इज द करेक्ट आंसर, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। वर्ल्ड फेमस रिवर आइलैंड सीट ऑफ वैश्वनाइट कल्चर माजुली डिस्ट्रिक्ट विल सून बिकम इंडिया फर्स्ट एवर कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बाय 2020 टू अचीव दिस गोल। और यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इन माजुली। तो यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इन माजुली, और ये कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट अपने आप में ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब बात आती है जो शेल गैस है, शेल ऑयल है, उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया में। वैसे आपको पता है कि शेल के जो कुएं मिलने स्टार्ट हुए तो अमेरिका वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, ओवरऑल नेट इंपोर्टर था। जब से शेल ऑयल मिले उसके बाद अमेरिका बिकेम नेट एक्सपोर्टर। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शेल जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो या तो रशिया है या यूएस है, सबसे ज़्यादा यूएस है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज फ्रैकिंग। फ्रैकिंग में क्या होता है, सैंड वाटर गैसेस को अंदर इंसर्ट करके जो रॉक्स हैं उसके अंदर जो स्पेशल शेल ऑयल एंड गैस है उसे प्रेशर की मदद से बाहर निकाला जाता है और इस प्रोसेस को फ्रैकिंग कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो केयर्न ऑयल एंड गैस हैज अनाउंस्ड दैट इट इज पर्टेनिंग यूएस बेस्ड हेलीबर्टन टू स्टार्ट शेल एक्सप्लोरेशन इन लोअर बार्मेर हिल फॉर्मेशन। जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर शेल के जो एक्सप्लोर करने की संभावना है उसको यूएस बेस्ड जो हेलीबर्टन है वो अब स्टार्ट करने वाली है। इज इट क्लियर? तो भारत भी अब शेल पर काम कर रहा है। आपको याद होगा रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने शेल के इंपोर्ट भी किया था। आपको याद आ रहा होगा जब जिस समय पर क्रूड ऑयल का जो दाम है, जो उसके जो प्राइसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सो व्हाट इज शेल ऑयल? शेल ऑयल इज अनकन्वेंशनल ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल शेल रॉक। कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये? ऑयल शेल रॉक से प्रोड्यूस होता है। फ्रेगमेंटेड बाय पायरोलाइसिस, और इसको फ्रेगमेंट किससे? पायरोलाइसिस का मतलब आपको पता ही है ना, पायरोलाइसिस का मतलब गर्म करना। जिस प्रकार से आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा प्रभाजी आसवन, हिंदी में इसे प्रभाजी आसवन कहते हैं, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। So fractional distillation is the process by which the crude oil, not shale oil, crude oil, उससे हम लोग एयर टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, डामर, राइट, इन सबको सेपरेट करते हैं। ये भी क्या करते हैं हम लोग? पायरोलाइसिस गर्म करके और उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। वैसे ही फ्रैकिंग में, फ्रैकिंग से तो निकाला जाता है, फ्रैकिंग प्रोसेस की मदद से तो ऑयल शेल रॉक से निकाला जाता है, राइट। एंड हाइड्रोजनाइजेशन, थर्मल डिसोल्यूशन की मदद से अनकन्वेंशनल ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसे सेपरेट कर लिया जाता है अलग अलग पार्ट में। जैसे पेट्रोल डीजल में हम लोग सेपरेट करते हैं, वैसे शेल ऑयल से भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। दीज प्रोसेस कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर विद इन, जो ऑर्गेनिक मैटर है रॉक के अंदर, जिसे कीरोजन कहा जाता है, इनटू सिंथेटिक ऑयल एंड गैस। इस प्रोसेस की मदद से, जिस प्रकार से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन इत्यादि को कन्वर्ट किया जाता है केरोसिन, उसी प्रकार से ये प्रोसेस भी शेल ऑयल में
लेकिन सबसे पहले जिस प्रकार क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर किया जाएगा वैसे ही पहले शेल ऑयल को एक्सप्लोर किया जाएगा। द रिफाइंड प्रोडक्ट कैन बी यूज टू सेम पर्पस एज दोज डेराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के पेट्रोल डीजल इत्यादि को किया जाता है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल क्रूड ऑयल? की डिफरेंस बिटवीन शेल ऑयल एंड द कन्वेंशनल क्रूड ऑयल इज दैट फॉर्मर, मतलब जो शेल गैस है इज कॉल्ड टाइट ऑयल, इज फाउंड इन स्मॉलर बैचेस, ये छोटे छोटे बैचेस में मिलता है, एंड डीपर देन कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट, ये ज़्यादा गहराई में मिलता है शेल। और देखिए अमेरिका स्टार्टिंग में शेल के ऊपर क्यों रिसर्च कर रहा था, पहले रिसर्च किया, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया कि वो चीपर टेक्नोलॉजी हो, ताकि जो मार्जिन है, कभी भी जो मार्जिन होगा तभी उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। किसी जगह हम मान लीजिए कि गोल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जितना हम उसको एक्सप्लोर करके और उसको रिफाइन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा खर्चा लग रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, उतना गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। विल वी इन्वेस्ट देयर? नो, हम वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। उसी प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। तो ये इवन दो इट इज़ फाउंडेड इन डीपर इन द कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट, ये ज़्यादा गहराई में मिलता है। इट्स एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ फ्रैक्चर्स करने पड़ते हैं इन दी रॉक, और उसके बाद में उसमें ऑयल गैस रिच शेल टू रिलीज हाइड्रोकार्बन थ्रू प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी को प्रेशर से डाला जाता है। सो फ्रैकिंग फॉर फ्यूल, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग इज यूज टू एक्सेस ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या होता है, मीथेन गैस एस्केप ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस, वो भी निकलते हैं, यहाँ पर प्रेशर के साथ पानी रिलीज किया जाता है। फ्रैकिंग होता है, देखिए फ्रैक्चर कर दिए गए, फ्रैक्चर की मदद से क्या होता है, जहाँ पर ये गैसेज हैं उनको हाई प्रेशर फ्रैकिंग फ्लूइड होता है और प्रेशर की मदद से गैस को तो बाहर निकाल लिया जाता है और यहाँ पर वो गैस, सैंड इत्यादि को इनपुट कर दिया जाता है। फ्रैकिंग इज अ प्रोसेस, क्या है भाई, ड्रिलिंग डाउन करना इनटू अर्थ बिफोर हाई प्रेशर वाटर मिक्सचर इज डायरेक्टेड एट रॉक टू रिलीज गैस इनसाइड। तो जो रॉक में गैस है, जो शेल है, शेल का मतलब ही किससे है, रॉक से है, तो वो जो है बाहर रिलीज हो जाए, वहाँ पर गैस, सैंड इत्यादि चले जाए। वाटर, सैंड, केमिकल्स आर इंजेक्टेड into rock at high pressure which allows the gas to flow out the head of the well, और वो जो है गैस ताकि बाहर निकल जाए। This process is carried out vertically more commonly by drilling horizontally। horizontally drilling करा जाता है ये इस तरह से, और vertically क्या है, pressure carried out किया जाता है। Is it clear? The term fracking refers to rock is fractured apart by high pressure mixture। तो इस प्रकार से हाई प्रेशर से वो काम करते हैं। शेल प्रोडक्शन के मामले में रशिया, यूएस अमंग द लार्जेस्ट शेल ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विद द सर्ज ऑफ शेल ऑयल प्रोडक्शन इन यूएस, इट इज प्लेड अ की रोल इन टर्निंग कंट्री एन इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू नेट एक्सपोर्टर। और यहाँ पर अमेरिका को देखा गया कि वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया। भारत में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये सब चलता है, तो भारत के उन सभी एरियाज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रोस्पेक्टिव बेसिन, तो यहाँ पर एक तो राजस्थान के जो बाड़मेर ये वाला जो रीजन है, राइट, कैम्बे बेसिन, यहाँ पर उम्मीद है जो रॉक्स हैं उसके नीचे ज़्यादा गहराई में है ये। इसके अलावा असम अराकाम बेसिन, ये पूरा रीजन असम अरुणाचल प्रदेश। गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश में, दामोदर वैली इन गोंडवाना बेसिन वेस्ट बंगाल, कावेरी, कृष्णा कावेरी ना, केजी बेसिन जो है, और कावेरी बेसिन, ये सभी वो रीजन है, आप ध्यान से देख लीजिए। दीज ऑल आर द रीजन वेयर वी कैन फाइंड शेल गैस। एंड अब हम लोग चूंकि अमेरिका के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उनके साथ में कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। एज पर यूएस EIA 2015 रिपोर्ट, 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इतनी शेल गैस इंडिया में संभावना है, मतलब रिकवर हैज गॉट टेक्निकली रिकवरेबल हो सकती है ना। और यहाँ पर कैम्बे बेसिन जो हमने देखा, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, दामोदर वैली, अपर असम रीजन है ना, प्राणहिता गोदावरी जो प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, राजस्थान, और विंध्या बेसिन, यहाँ पर पूरी संभावना है।
ONGC हैज ड्रिल फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी शेल वेल, जो कुआं है वेल, उसे जंबूसर नियर वडोदरा में, जंबूसर में सबसे पहली बार, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहली बार शेल के लिए इन्होंने एक्सप्लोर किया था हमारे ONGC ने, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा, भारत की जो महारत्ना कंपनी है। What are the, how many of Maharatna companies are there and Navratna companies are there? Maharatna, Navratna और Mini Ratna. What is the comparison? On what behalf we can discriminate these different PSUs? तो आप बताइए इनको किस बिहाफ पे किया जाता है? Write a short note on this. What are the prospects of shale oil exploration in India? Currently there is no large scale commercial production of, अब भारत में बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है। शेल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फेसेस सेवरल चैलेंजेस अदर देन एनवायरमेंटल कंसर्न अराउंड दी मैसिव वाटर रिक्वायरमेंट है, फ्रैकिंग पोटेंशियल, एनर्जी की जरूरत होती है जब इसको किया जाता है। स्टेट ओन्ड ONGC had 2013 started exploration by the end of fiscal year 2021। तो ये सब स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर खुद का एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया भी चाहता है कि लीस्ट जितना हो सके, बट 80% इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, 20% जो है क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग, तो इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर, मीथेन क्लैथरेट, शेल ऑयल, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट इट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, ओनली गेटिंग लिमिटेड सक्सेस, हमारे को बहुत ज़्यादा सक्सेस अभी तक नहीं मिले। आई थिंक ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 23rd of November विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिड मॉडल क्या है, नाउ इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़, हाइब्रिड मॉडल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एंड क्रूड ऑयल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिस, वाई दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो है 10 years का जो एक टेन्योर था उसको एक्सटेंड किया गया, जो गाड़ी कार्स में जो है वो कम चली उनके लिए। विल डिस्कस अबाउट फार्म बिल एंड मैनी मोर थिंग्स जो प्रीवियसली आई हैड नॉट डिस्कस। विल डिस्कस few topics of previous days so that if any important topics is yet to discuss, we'll discuss that in the next lectures, right? So thank you so much. I stop here today. Keep learning, keep watching The Catalyst. Jai Hind. God bless you all.